Siddharth is a Hi. boy uh, uh, earned his degree in psychology. So just put that out there for you all to understand that he understands emotions and he understands the implications of experiences and the bag of emotions that they bring with them. Siddharth finished his graduation and then went on to explore life. Siddhant has worked, volunteered, and experienced various organizations that work for generating social well-being and environment, traveling. So he's done it all. He's seen life the best way possible. Welcome aboard, Siddharth. Please introduce Thank you. yourself in a couple of words to our audiences. You have done an amazing introduction. मैं क्या ही बोलूँ अब मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल दिया. And yes, I'm right now just traveling and exploring new communities, different organizations, and trying to understand that how they operate and how they perceive this world. So basically, I'm gathering different perceptions and different lenses. Lovely. Yes. Siddharth, before I go on to, discuss the more complicated feelings and emotions, I just wanted to ask, have you experienced depression in your own life, considering that you De- are a psychology graduate yourself? Definitely. And I won't say that funny part, but the normal thing is that I've experienced it when I was actually studying psychology in my college time. So I was in my final year in that frame, and so and the thing is that मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ जब तक मैं उससे बाहर नहीं निकल के आया. Wow. Being in that environment of like whole psychology students, teachers, and everything, so quite an like it gave a different perspective to understanding this whole depression, sadness, and everything. कि आप दिख अच्छे सकते हो, आप स्माइल कर सकते हो, आप अपने आप को अच्छे से तैयार होकर बाहर प्रेजेंट कर सकते हो, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड I think we'll be talking about that only, that how to create safe spaces and be vulnerable in the whole session. Lovely. तो सिद्धार्थ एक तरफ तो इन चीज़ों के बारे में बड़ी थियोरेटिकली किताबों में पढ़ रहे थे, शायद एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, सब्जेक्ट्स भी ऑन बोर्ड ले रहे थे और उन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो डिप्रेशन झेल रहे थे, उन्हें पता भी नहीं. So Yes. sometimes you may know what it feels like in words. You may have gone through it, you may have read a lot about it, you may have been googling all kinds of symptoms, but when it really happens to you, it's not very easy to identify. So Siddharth, so how did you exactly how did it change you as a person? Like while you were in that phase of depression, what kind of behavioral changes were you experiencing? Did anybody notice around you when you were going through all of that? Okay, so so depression changed me definitely. पहली चीज जो हर बहुत कॉमन होती है कि डिप्रेशन के बाद आप अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हो, बाल बढ़ा लेते हो, कबीर सिंह जैसे बन जाते हो, कम्युनिकेशन रुक जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज जाना आप कम कर देते हो. सो आई रिमेम्बर मैं अपने फाइनल ईयर में था और जैसे फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ मैंने कॉलेज जाना पूरा खत्म कर दिया. मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, जो अपना काम था, डेली रूटीन था, मैं बस वो करता रहता था. तो और मैं उस पूरा लूप में था. मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं सैड हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है. Because one thing which I used to love about myself and people used to actually compliment me about it, you are a very confident human being. You can do things. I mean, you can give presentations, you can go and talk to people, you can share your feelings and do things. And you're always outward, you communicate well, you share. But still, मुझे उस चीज का realization नहीं था कि मैं बहुत sad हूँ आजकल. And in that phase, I still remember, and it generally happens that मेरे को लगा था मेरी जिंदगी अब यही है. मेरी जो लाइफ जिसको मैं देख रहा था वो सेट हो गई थी, वो लॉक हो गई थी. जैसे कि 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, 25 साल बाद ये होगा, एंड दिस दैट खत्म, मेरी लाइफ खत्म. तो मेरे लिए जैसे वो पूरा
डिप्रेशन के फेज में मेरी जो फ्यूचर के जो मेरे थिंकिंग थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसको लॉक कर दिया था कि इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, यही है, ऐसा ही होगा, यही जिंदगी है अब मेरी। और तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा, यस, हाँ प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। सो फर्स्ट टाइम हो रहा था मेरे साथ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं कॉलेज जा नहीं रहा था, तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। मैं, मेरा होम टाउन भोपाल था, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भोपाल में रहता था और मैं दिल्ली में आ गया था, तो उससे भी ओवर द फोन ही बात होती थी, तो वो कम होती थी। और जब मैं डिप्रेशन से बाहर आया तब मैं शॉक्ड था, क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ शिट, मैं डिप्रेशन में था, मैं डिप्रेशन का पूरा फेस कवर करके आ रहा हूँ, और मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि ये सब, मतलब वो होता है जब गड्ढे में हो आपको नहीं पता, जब आप ऊपर जाओगे तो देखोगे अरे ये तो मैं बहुत नीचे बैठा हुआ था, मेरे साथ तो ये हो रहा था। फिर ऐसा लगता था कि वाह, मैं तो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं एक वापस से जेन्युइन अपना, फीलिंग ऑफ डिसइंटरेस्ट था, एक जेन्युइन फीलिंग ऑफ सैडनेस था, जो यस, जिंदगी को ही ऑब्जेक्टिवली नहीं देखने दे रहा था, जो बहुत पॉजिटिव काइंड की प्लानिंग नहीं करने दे रहा था। तो इस दौरान क्या मल्टीपल प्लानिंग्स भी हो रही थी, आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों वो करूंगा? नहीं, क्या? एक्चुअली मल्टीपल प्लानिंग्स नहीं हो रही थी, वो एक रूटीन बन गया था, और उस पे शायद दैट वाज माय कंफर्ट जोन, तो मैं उसी पे सिर्फ उसी को फॉलो कर रहा था, और मैं अपने स्ट्रेच जोन में नहीं जा रहा था, मैं अपनी ग्रोथ में नहीं जा रहा था, मैं नई चीजें ट्राई नहीं कर रहा था, और मैं वही सारे रिचुअल्स को, डेली रूटीन्स को फॉलो करे जा रहा था। और उसी के लिए मुझे वो हो गया कि अब मेरी जिंदगी यही है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही जीना है, और कुछ नया और ऑप्टिमिज्म, होप, वो लाइफ से एकदम गायब हो गया था। एंड जब मैं उससे फिर बाहर आया तब मुझे अब मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा, मेरा ह्यूमर वापस आ गया। तो मतलब मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, मुझे याद है, अरे तुम आ गए, तुम मेरे अंदर थे, कहाँ चले गए थे? मैं ऐसी बातें कर रहा था अपने आप से, और मैं, आई मीन, ये थोड़ा वियर्ड लगता है लोगों को अपने आप से बात करना, बट ये चीजें एक्चुअली मेरे साथ हुई थी। मुझे याद है वो दिन मैं बैठ के बात कर रहा था अपने आप से, और मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये मेरे अंदर ह्यूमर था, मैं भूल गया था इसे। कई चीजें जो डिप्रेशन से पहले मेरे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट थी, कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ये चीजें करता हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें करना मैंने छोड़ दी थी उस डिप्रेशन के फेज में। और मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि मैं कई चीजें छोड़ता जा रहा हूँ, कई चीजें भूलता जा रहा हूँ, और कई रिश्तों को इफेक्ट हो रहा है उससे, मेरे फ्रेंड सर्कल को इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर वो आपके अंदर वो सोच आने लगती है कि अब मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको छोड़ के चला गया था उस समय, या फिर मैं उनके साथ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं की अपनी एनर्जी। मैं 6 महीने से, अगर आप नमिता और हम दोनों दोस्त हैं, 6 महीने हमारी बात नहीं हुई, तो फिर मैं 7वें महीने में थोड़ा हिचकिचाऊंगा कि ये तो मुझे भूल गई होगी, या ये मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारा रिलेशनशिप अब वैसे सेम नहीं रहेगा। क्योंकि, और वो ज़रूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि फाइनल ईयर के एंड में जब मैंने कॉलेज जाना चालू किया, थोड़ा सा मैंने एफर्ट डाला, तब लोगों ने मुझे बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया। लोग मेरे से पूछते थे कि यार तू कहाँ था, हम तुझे मिस करते थे, मेरे पास आके बैठे, मेरे से बात करी। और 2 दिन में मेरे लिए ऐसा हो गया, तो सब पहले जैसा है, फर्स्ट ईयर जैसा महसूस हो रहा है। और फिर अच्छा। ऐसा लग रहा था यार मैंने मिस कर दिया। हाँ, अच्छा लग रहा था कि वो एक्सेप्टेंस, मुझे लग रहा था नहीं है, बट वो एक्सेप्टेंस था, और वो एक्सेप्टेंस आई थिंक होता है। बट क्योंकि आप उस फेज में होते हो, आप उस डिप्रेशन में होते हो, आप चांस नहीं देते। और जैसे ही आप उस चीज को चांस देते हो, जैसे ही आप उस सिचुएशन में जाते हो, पीपल आपको, वो लोग, आपके दोस्त, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है पूरी तरीके से नहीं समझे, हो सकता है पूरी तरीके से आपको सपोर्ट ना कर पाए, बट वो आपको एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि हाँ तू है, तू अभी भी हमारा दोस्त है, आजा बैठ, बात करते हैं। आप सुन तो रहे हैं ना, एक 22 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा रोज कॉलेज जाता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, प्रेजेंटेशंस दे रहा है, सब कुछ खुशनुमा चल रहा है, और धीरे धीरे दबे पाँव कब उसकी जिंदगी में डिप्रेशन आन पड़ा पता ही नहीं। उसे उस हम्म, वक्त, उस दौरान तो कतई पता नहीं लगा कि वो डिप्रेस्ड है जिस दौरान वो था। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में डिसइंटरेस्ट जगह बनाती जा रही है, तो आप डेफिनेटली डिप्रेस। अगर एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म कुछ करने का
रोज रोज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। आपकी जो रूटीन है वो बेड पर लेटे लेटे अगर बीत जाती है तो आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। ज़रा पता करिए, खुद को कंट्रोलिएगा ज़रूर। और जैसा कि सिद्धार्थ कह रहे हैं, मुझे लगता है इस बात को बार बार कहने की ज़रूरत है कि जिस दौरान आप उस फेज में होंगे आपको शायद पता नहीं चलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई और चीज़ बदली नहीं होती, बाकी सब कुछ जो का त्यों रहता है। कोई भूचाल नहीं आता है, अचानक से कुछ नहीं होता है, चल रहा है, पर मंडेन हो जाता है आपका लाइफस्टाइल, बड़ा डिसइंटरेस्टेड फील करते हैं। सिद्धार्थ, इसी के साथ अब मैं एक दूसरा पहलू जो समझना चाहती हूँ, ये समझना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि आपके दोस्तों ने आपसे कांटेक्ट किया, आपको अप्रोच करने की कोशिश की, आपके कॉलेज के दोस्तों ने, आपके आसपास के लोगों ने आपके अंदर चेंजेस जो हैं वो आइडेंटिफाई की, उनको समझाया किया, तो उन लोगों ने आपको कैसे हैंडल किया? आपके दोस्त कॉलेज के बाहर कैसा रिसेप्शन लगा और आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा जब उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की? ओके, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपकी लास्ट लाइन में ऐड करना चाहूंगा कि पिक्चरों ने बहुत सत्यानाश किया है काफी सारी चीजों का, काफी सारी कंडीशनिंग पिक्चरों ने कर दी है कि डिप्रेशन क्या होता है, दारू पी रहा है और एक बारिश में भीग के रो रहा है, कोने में बैठा हुआ है, वाइट शर्ट पहन के सड़क पे जा रहा है। तो वो बड़ी बड़ी चीजें दिखा दी हैं, दर्द वाले गाने सुन रहा है, और फिर हम भूल जाते हैं कि ये जो डे टू डे लाइफ में हम, जैसे आपने कहा कि वो मंडेन हो गया है, डिसइंटरेस्ट हो गया, मुझे लगा यार यही जिंदगी है, क्योंकि मुझे यही लगने लगा था, एग्जैक्टली यही मेरे साथ हो रहा था, यही है, ठीक है, यही है, ऐसे ही है। बट वो डिप्रेशन हो सकता है या वो सैडनेस का एक फेज हो सकता है, उस टाइम पे रियलाइज करना कि जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी उससे और खूबसूरत और आगे बहुत सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज, होप, ऑप्टिमिज्म ला सकती है। तो हमें शायद वही हो जाता है, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें हेल्प चाहिए, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें हमारे साथ कुछ हो रहा है, मुझे अटेंशन दें। क्योंकि हमें लगता है डिप्रेशन तो यार वो होता है जो पिक्चरों में दिखाते हैं, ऐसे जाके रो और ऊपर अकेले बैठ के ऐसा करते हैं, वो करते हैं, बट हंसते खेलते चीजों में भी कैसे उसके पीछे कैसे डिप्रेशन आ सकता है, उसके पीछे कैसे सैडनेस आ सकती है, तो वो नॉर्मलाइज नहीं है। उसको आई एम ट्राइंग टू से कि उसको नॉर्मलाइज करोगे तो एक्सेप्ट करने में भी आसानी होगी कि हाँ है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त को बता सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, थेरेपी ले सकता हूँ। तो ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हम सबके लिए समझना। जब आपने रियलाइज नहीं किया कि आप डिप्रेस्ड है, लेकिन जो सैडनेस थी आपने अपने दोस्तों को जिनके साथ आप अप्रोच कर रहे थे, इन द सेंस जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे थे, उन लोगों ने जब आइडेंटिफाई किया तो आप कितना खुलकर उनके सामने आ पाए? क्या वो रिसेप्टिव थे आपके इमोशंस को समझने के लिए? तो जब मैं उस पूरे फेज में बीच में था, तब मैंने हैंग आउट करना छोड़ दिया था, मैं किसी से नहीं मिलता था, तो वो पॉसिबिलिटी मैंने ब्लॉक कर दी थी कि कोई आया और मुझे समझे और मेरे से बात करे, तो वो पूरा ब्लॉक्ड था। मैं अलग ही एक सेक्लूजन वाले जोन में था अपने, और अपने दिन में जो चीजें होती हैं उनके। बट मुझे अभी भी एक बहुत प्यारा इंसिडेंट याद है कि मैं अपने रूम में था और मेरे जो फ्लैटमेट था उसको मालूम था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरे साथ कुछ हो गया है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, कुछ हो गया, उसको मालूम थी सारी सिचुएशन। तो उसने बहुत प्यारी एक चीज करी, उसने मेरे क्लासमेट्स को कॉल किया कि सिद्धार्थ कल कॉलेज आएगा, तो तुम मुझसे एक बार पूछना ना कि वो कैसा है, उससे एक बार बात करना। तो मैं कॉलेज आया और मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो रैंडमली मेरे पास मेरी बहुत पुरानी एक दोस्त थी अंकिता, वो आई, उसने मेरे से कहा कि तू कैसा है यार, तू दिखता नहीं है आजकल, मैं तेरे को मिस करती हूँ, और तेरे को मालूम मैंने कभी भी तेरे को लाइफ में किसी भी चीज के बारे में बात करनी है तो तू मेरे से बात कर सकता है। तो ऐसा 3-4 लोगों ने उस दिन मेरे साथ किया कि वो मेरे पास आए और मुझे बस इतना बोला कि तू कैसा है, तू, हम तुझे मिस करते हैं, तू बात कर सकता है। तो आई थिंक वहां से मेरा वो शुरू हुआ, कहीं ना कहीं वो रिपल इफेक्ट तो होता है, अंदर ही अंदर वो रिपल इफेक्ट होता रहता है, बट वो छोटा सा जो एक सीड होता है, वो सीड शायद वहां से प्लांट हुआ कि तू बात कर सकता है, तू हमारे पास आ सकता है। तो मेरा जो माइंड में मिथ था कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी इनसे 1.5 साल से बात नहीं हुई है, यही मेरे को तो ना क्लास में आके ना चुपचाप कोने में बैठना पड़ेगा और ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो टूट गया। क्योंकि वहां पे लोग
सबने ही जो सपोर्ट किया, सबने ही जो, उसमें ऐसा भी नहीं कि उन्होंने आके सीधे बोला अरे तू डिप्रेशन में, तू थेरेपी ले, या तू हम तेरे से काउंसलिंग करते हैं, वो सारी चीजें भी नहीं हुई, बट वो एक बहुत माइन्यूट सपोर्ट, यू कैन टॉक, फर्स्ट यू कैन टॉक एंड वी आर देयर फॉर यू, दैट वर्क, एंड ये बहुत जरूरी होता है। Okay, so let's say, so since you mentioned that this onset of depression happened because you probably went for depression or whatever, because sorry, you went through a breakup or something similar, because you mentioned hypothetically. तो ये जो ब्रेकअप वाली स्टोरी है अपने यारों से, मतलब जो आपके लड़के दोस्त रहे होंगे, उनके साथ आपने डिस्कस किया, और वहां से किस तरीके का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और किस तरीके का रिस्पांस आपको सामने से मिला? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी ऑफ अ मेल बॉन्डिंग। तो मैं इसमें एक्चुअली एक इंस्टेंस नहीं शेयर करना चाहूंगा, मैं दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास आई थिंक मेरे साथ दो वो बहुत डाउन वाले फेज आए हैं जहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन टच किया है और भी चीजें टच करी हैं, और मैंने हर बार देखा है कि वहाँ पे डायनामिक्स, जो मेल सपोर्ट डायनामिक्स थे, वो बहुत अलग थे। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ हुआ तो मेरा एक मेल फ्रेंड, वो इतना कंसर्न्ड है, उसके अंदर एम्पैथी है, वो मेरे क्लासमेट्स को फोन करके बोल रहा है कि यार तू इससे बात करना, सिद्धार्थ से। वो हर शाम को मेरे रूम में आ रहा है और मेरे साथ बस बैठ रहा है, और क्या चल रहा है, कैसा है, तू ठीक है, अच्छा क्या किया आज। तो मेरे को वो सपोर्ट कर रहा है अपने तरीके से। और ये मेंस में थोड़ा वो मुझे लगता है इसलिए भी है क्योंकि वो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से था, वो समझता है, उसके अंदर शायद वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनली मैच्योर है, तो वो स्पेस होल्ड कर सकता है। वहीं पे दूसरे एंड पे जो मेरा आई यूज्ड टू वर्क इन डिकैथलॉन पार्ट टाइम, तो वहाँ का जो ग्रुप था, तो वहाँ पे तो क्या होता है वहाँ फन, मतलब मेंस के लिए जो कि यार चल मस्ती करने चलते हैं, जो लड़के लोग बोलते हैं उनके लिए दारू सिगरेट ही मजा होता है, कि वही है हमारा मजा, वही है जिंदगी, यही है, गाली देनी है, एक दूसरे को परेशान करना है, और एक दूसरे के का मजाक उड़ा के ह्यूमर क्रिएट करना है, जो बैड ह्यूमर इन अ सेंस जिसे को कहते हैं। तो वो वाला एक बहुत बड़ा सा सर्कल था जिसमें बहुत लोग थे, जिसमें 15 लोग थे, 15 लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो उनके अलग अलग डायनामिक्स हैं। तो वहाँ पे 1% भी सेफ स्पेस नहीं था, 1% भी सेफ स्पेस नहीं था। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अगर मैं अपनी बात करता ना कि यार मेरे को आज ना मैं दुखी हूँ, मेरे को ऐसा रोना आ रहा है, अबे लड़की है क्या, कैसी बातें कर रहा है, चल चुपचाप ये दारू पी के खत्म कर यार, क्या क्या मतलब मेरे को तो गाली आ रही है, वैसे गाली देके बात करते हैं कि ऐसे क्या 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 लगा रखा है ये, तू मर्द बन मर्द, चल ऐसे चल नैनीताल घूम के आते हैं, चल यहाँ घूम के आते हैं। तो वो मोमेंट्स में भी मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम ही सब वो मोमेंट्स खराब होते हैं, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं अपनी वो स्टोरी कंपेयर कर सकता हूँ जहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ मेल्स के साथ मैं कंफर्टेबल था, जहाँ मैं सेफ स्पेस क्रिएट कर सकता था, जो मेरे लिए सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते थे, और वहां मैं वल्नरेबल हो सकता था, और वहां मेरा रियल सेल्फ आ सकता था कि आज मुझे बुरा लगा, आज मैं रोया, आज मुझे नींद नहीं आई रात में। और दूसरी जगह मैं वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं बोलूंगा तो मुझे मालूम मेरा मजाक बनेगा। So you felt awkward approaching. So I felt awkward. अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तो आप एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर्स वहां पर दे रहे थे, लेकिन you felt awkward expressing because you knew what was coming your way if you expressed that. वहाँ मतलब नंबर ऑफ आवर्स तो मेरे बहुत जा रहे थे क्योंकि मैंने कॉलेज जा ही नहीं रहा था, तो मैं वहीं जाता था, मुझे वहीं अच्छा लगता था काफी। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आए हैं वहां से मेरे लाइफ में, बट कुछ पार्ट मेरा वैसा था। तो मैंने पूरी यही चीज नोटिस करी कि वो मेन के बीच में सेफ स्पेस की कितनी कमी होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे सिर्फ मैं ही नहीं था उस ग्रुप में जहाँ पे सब दारू सिगरेट और गाली गलौज और सब बिचिंग और ये सारी चीजें चल रही है, वहां सिर्फ मैं ही नहीं था जो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था या अपनी वल्नरेबल साइड को बाहर नहीं ला रहा था। वहां वो हर एक इंसान जो वहां बैठा हुआ था ना, वो हर कोई अंदर से दुखी था, अंदर से पेन कैरी कर रहा था, अंदर से उसकी लाइफ में कुछ चल रहा था जो वहां उस टेबल पे, उस स्पेस में वो रख नहीं सकता था, क्योंकि उसे मालूम था वो वहां रखेगा तो उसका मजाक बनेगा या उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, वहां पे उससे वो वार्मथ नहीं मिलेगी जो उसे वो वार्मथ चाहिए। क्योंकि जब इंसान वल्नरेबल होता है, जब वो अंदर से टूटा हुआ होता है, उसको एक सिंपल सी चीज सी होती है, कोई पकड़ ले, कोई बात कर ले, कोई वार्मथ
जैसे मेरे को मेरे स्कूल कॉलेज के लोगों ने दिया कि तू हमसे बात कर सकता है, हम तुझे मिस करते हैं, तो उसने एक सेटल फील कराया, मुझे मन में सेटल फील कराया। तो उस स्पेस में आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग ऐसे हैं, कि वो ग्रुप ऐसा था जिसकी वजह से मैं वल्नरेबल नहीं हो पाया, Because मुझे सेफ that स्पेस नहीं मिल पाया। we are only talking about your experience. We are not पार्डन? judging the people involved. It's just नहीं, very heartbreaking, but there's something that the society gives us, and we're only reflecting. यस यस यस, इट्स द कंडीशनिंग जिसकी वजह से ऐसे स्पेसेस क्रिएट होते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान वल्नरेबल नहीं हो सकता, जहाँ पे कोई भी इंसान खुल के अपनी मन की बात नहीं कर सकता, और ये वहां पे सबको पेन हो रहा है। खुल के बात करने की है सिद्धार्थ। ये आपने घर में कभी बात की इसको लेकर? मान लीजिए जिस दौरान आप इस फेज से गुजर रहे थे, चूंकि आपको खुद भी नहीं पता था क्या हो रहा है, तो इसको एड्रेस करना तो मुश्किल रहा होगा, लेकिन रिकवरी के बाद क्या आपने अपने घर में इसको एड्रेस किया? डिड यू टॉक टू somebody, and if you did, who did you approach and why? आई स्टिल रिमेम्बर जब मुझे ये चीज ऐसे नई नई पता चली थी, तो मैं लोगों को बताता था, शेयर करता था कि यार मैं डिप्रेशन में था, मुझे मालूम नहीं था, तो इसलिए ताकि वो लोग भी अवेयर हों उस चीज के बारे में, उनको पता चले कि क्या होता है। तो मैं अपने घर गया ही गया था ये सारे फेज के जस्ट बाद, और मैंने अपनी मॉम को सबसे पहले, कार में ही हम लोग जा रहे थे, तब मैंने उनको बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो उनका बहुत नॉर्मल वो था कि अब कैसा है, अच्छा अब ठीक है, बढ़िया है, ठीक है वाला। तो सोसाइटी ने, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद हर, बिकॉज आई नो दैट मेरे फादर के साथ मेरे अलग डायनामिक्स है, और वहां मैं बोल नहीं सकता, मतलब बोल सकता हूँ बट मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे अंडरस्टूड नहीं महसूस होता, वहां पे मुझे वो कंफर्ट नहीं महसूस होता, और उसमें कई साल तक मुझे लगता था कि उनकी गलती है, कि वो बड़े हैं, उनको ये समझना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये बेटा ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है लाइफ में। बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि ही इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ द होल पेट्रियार्की, और मेन डोंट क्राई, और इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी एक ड्यूटी है। सो मोर देन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मोर देन बीइंग अ फादर, हस्बैंड, ब्रदर, यू हैव अ ड्यूटी। तो वो ड्यूटी में आप बहुत सारी चीजें नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, उसके ड्यूटी की बाउंड्रीज होती हैं, फिर आपकी, आप उसी सेट बाउंड्रीज के अंदर ही फिर आपकी जिंदगी बन जाती है। आप रो नहीं सकते, आप बच्चों के सामने अपना दुख नहीं एक्सप्रेस कर सकते, और क्योंकि वो नहीं होता है, तो ये जो पूरा दुख वाला, सैडनेस वाला, डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला जो पार्ट है, ये नॉर्मलाइज नहीं होता है, क्योंकि हम अपने घरों में नहीं देखते हैं। हम अपने घरों में, ठीक है, बहुत कम लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं, बट हम ये, कोई हमसे ये नहीं बोल रहा कि यार अरे बेटा मैं भी अपने टाइम पे रोई थी। कोई अपनी माँ जाके अपने बच्चे को नहीं बोलती कि मेरे को भी रोना आता था जब ये हुआ था। पापा जाके कभी नहीं आके बोलते कि मेरे को भी दिल टूटा था, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, मेरे साथ भी XYZ चीजें हुई थी। तो उस चीज को नॉर्मलाइज ही नहीं किया, तो फिर हमें डील करना नहीं आता डिप्रेशन से, हमें डील करना नहीं आता कॉन्फ्लिक्ट से। आई एम लिविंग विद अ गाय राइट नाउ, जिनका ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं हूँ, शमी नंदा। ही ऑलवेज सेज कि अगर हंगर का ऑल्टरनेटिव होता तो हम वो कर रहे होते, बट हंगर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हम खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। वैसे ही हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई, ये कॉन्फ्लिक्ट जो सारी सिचुएशन में होता है, लड़ाई होती है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जाना, उसको नॉर्मलाइज करना कि लड़ाइयाँ भी होती हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, दिल भी टूटता है भाई, रोना भी आता है। मैं भी अपने टाइम पे जब 10th क्लास में था तो बेड पे रात में नींद नहीं आती थी, रोता था, तकिए को ऐसे गले लगा के लेटता था। अभी पता सबको है, सब करते हैं यहाँ पे, मैं करता हूँ, मेरे 5 और मेल फ्रेंड्स रोज जैसे तकिए को हक करके रात में सोते होंगे, बट गलती से मैं वो सामने नहीं बोल सकता। मैं सामने बोलूंगा तो अरे कैसी बात कर रहा है तू। तो आई थिंक उसको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। How long were you in this phase, Siddharth? I think 6, 7, 8 months. I So will. better part of a year. हाँ. And after you recovered, you realized that you are out of it. Of course, you've already shared with us. Did it ever relapse? Like, you had recovered, you had become your original older self. But did you ever slip back into that kind of sadness or anxiety?
तो again. अगेन मैं वो रिलैप्स वाली चीज मैं शायद अभी नहीं मानता। मेरे साथ हुआ, मैं दोबारा उस फेज में आया। रिलैप्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं मानता, क्योंकि मैं अब मान चुका हूँ कि ये नॉर्मल चीजें हैं। लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, सैडनेस भी आएगी, अप्स एंड डाउन सारे होंगे। तो वो रिलैप्स नहीं है, वो एक फेज है जो आएगा ही आएगा। तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये अभी चल रहा है, अच्छा ऐसा है, उसके बाद वो भी होगा, फिर ऐसे फिर से आ सकता है, फिर मैं खुश होऊंगा, फिर मैं दुखी होऊंगा। तो अगर मैं उसको रिलैप्स बोलता हूँ तो मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मेरी एक बीमारी थी जो अब ठीक हो गई, लेकिन अब वो दोबारा भी आ गई। लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये एक Just because you could identify it the second time, you could deal with it better. You not नो, sit back. मैंने आइडेंटिफाई किया लेकिन मैं डील नहीं कर पाया। बट हाँ, मुझे ये पता था कि इस बार मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम की वो प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग जब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और बोला कि अरे तू बात कर सकता है, वो मेरे अंदर अभी भी थी। तो सेकेंड टाइम जैसे ही मैं उस फेज में आया तो आई न्यू कि मेरे पास कौन कौन लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जो मेरे लिए स्पेस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। Can you specify the genders that you felt you could approach to, and like if there is any kind of sort of going back and looking into that, were women more receptive to the idea of sitting and talking it out with you, or were men also there? And that I am putting out there, knowing that you would have a lot of friends, male friends from psychology background as well. Even then, I want to put across this question and ask. तो मेरे साथ वही दोबारा जब सेकंड टाइम मैं उस फेज में आया, तब दोबारा वो इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ कि एक सेट ऑफ मेल फ्रेंड्स ने मुझे होल्ड किया, जो समझ सकते थे, जो सुन सकते थे। दूसरे सेम वही फर्स्ट टाइम वाली स्टोरी। तो ये इंटरेस्टिंग डायनामिक्स मैंने दोनों बार देखे, और मुझे अभी भी याद है एक काफी काफी पेनफुल एक सिचुएशन हुई थी मेरे साथ, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं बहुत डिप्रेस था उस दिन। और मैं एकदम नम्ब होके बैठ गया बेड पे। मेरे बगल में एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसके बगल में एक और बैठा हुआ था। तो हम 3 लोग थे एक रूम में, और मैं बैठा हुआ था, अंधेरा सा हो रहा था रूम में, रात का टाइम था। और मेरा फ्रेंड मेरे से बात कर रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, अपनी कुछ बात कर रहा है। और उसने एक लाइन बोली कि उस टाइम पे मेरा ब्रेकअप हुआ था ऐसे करके, और मैं बहुत नम्ब था, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। तो उस वर्ड से मैं एकदम ट्रिगर हो गया। मैंने कहा मेरा भी हो गया, मेरे ऐसे मुंह से निकल गया। और उस समय वो बोलने के बाद मैं लेट गया और मैं चुप हो गया। और जिसको मैंने बोला था वो इंस्टाग्राम चला रहा था, और वो इंस्टाग्राम ही चलाता रह गया, उसने कुछ नहीं किया। और उसके बगल में जो एक था जिसके साथ मैं कई समय से रह रहा हूँ, वो ही वॉज प्लेइंग गेम, ही वॉज प्लेइंग COD। एंड वो खेलते खेलते मेरे से ऐसे खेलते खेलते पूछ रहे हैं, क्या हो गया सिड? अरे क्या हो गया बता ना, बात करना यार। तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा उस सिचुएशन में? बट यहाँ पे अगेन उनकी गलती नहीं है, वो उनको वो उस चीज के लिए नॉर्मलाइज्ड नहीं है, वो नॉर्मलाइज नहीं है। उनको लगता है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन आ गया, हमको डील करना नहीं आता। जबकि आई बिलीव कि एवरी ह्यूमन नोज हाउ टू डील नहीं है कुछ। यू जस्ट हैव टू होल्ड दैट पर्सन, यू जस्ट हैव टू टेल देम ओके मैं हूं तेरे सामने, मैं हूं तेरे साथ। मे बी गिव अ हग। मेरे को हग्स बहुत पसंद है, तो मैं तो हग मांगता रहता हूँ। और मेरे को तो लगता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे कोई आके हग कर दे। So have you really also been pushed back? Like, अबे क्या कर रहा? Because that's men again are not very easy with bodily display of affection. So तो मैं बड़ा मैं समझ जाता हूँ, तो मैं ना वो बड़ा मैं भी देख के हक करता हूँ कि अरे इसको करना है कि नहीं करना। वहां पे यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो मैं भी फिर वो बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करता उसकी, कि ठीक है उसका वो कंफर्ट जोन है। So in the household, Siddharth, do you have siblings, cousins, uncles, fathers that you can physically approach and hug? Or is that something that is not really asked not to do, but is also normally not done? No, I don't remember hugging any of my uncle, any of my like I don't remember. The cousin, the girls.
कजन्स, हाँ कजन्स के साथ तो हाँ गले वले मिला, हम सब सारे ही सेम एज के हैं, बड़े हैं. Did the girls, could the girls approach the uncles or the fathers more freely and give them a hug than the boys of the family? To me or No, to the elder men in the family. नहीं, they don't. So, physical display of affection is also something that a lot of families don't say that you can't do it, but it has never happened. That's with men. So, And the sad part is both the people, like even the father or uncle जो भी है, they both crave for it. They both need that. मेरे से ज्यादा शायद मेरे पापा को हक चाहिए, उनको शायद ज्यादा वार्मथ चाहिए, because he has been pressurized with that conditioning, duties. आप रो नहीं सकते, आप एक मेल हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इमोशंस. So I know a man, he's a father. वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं और वो एक सेशन लेते हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं और वो फादर्स के साथ सेशन लेते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों के साथ इमोशन शेयर करना. क्योंकि उनकी ये स्टोरी है कि उनका बेटा बार बार उनके पास आता था, बोलते था मुझे पापा आपसे बात करनी, और बोलते थे मैं बिजी हूँ अभी, या मैं अभी नहीं कर सकता. उसको नहीं पता था कि पापा के साथ मैं इमोशनल पार्ट शेयर नहीं कर सकता. तो वो बार बार आता था, पापा बार बार उसे दूर कर देते थे. एंड वन डे ही कमिटेड सुसाइड. तो उसके पापा को भी एकदम शॉक हुआ, सब कुछ हुआ. और जब वो 2-3 दिन बाद उसके रूम में गए तो उसके रूम में ड्रॉर खोला और ड्रॉर में एक लेटर था कि उसमें इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कि मेरी कहानी बर्बाद मत जाने देना, मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाना, शेयर माई स्टोरी टू द वर्ल्ड. तो तब उनको वो समझ में आया कि कितना जरूरी है, वो मेरे से बात करना चाहता था और मैं उससे बात कर सकता था. On that note, coming back to your story, I just wanted to understand. So, in that situation, after you had completely understood all of this, did you go back home, sit with your dad, maybe over a cup of tea, and ask him, so how are you doing today? Like, how are you feeling today? So Yes, I did. How did you respond to that? Maybe initiating a change in culture. I did. I tried, and it happened because of my partner, Silky. It happened because of her. She really supported me in that, and she only उसने basically दिखाया ये रास्ता कि तू ये बोलता है, ये मानता है, तू ये कर भी सकता है. तो मैंने कहा हाँ. तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने अप्रोच किया, मैंने बात करी पापा से. बट थोड़ा सा, क्योंकि आदत नहीं है दोनों की एक सर्टेन तरीका जीने का हो चुका है कि ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही बात करनी है. थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आया, बट बात हुई, बहुत ओपन होके नहीं हो पाई. बट मैं वो देख रहा था कि पावर होती है वल्नरेबिलिटी में, कि जब मैं ओपन होऊंगा तो सामने वाला भी ओपन होगा. जैसे ही मैं अपनी वॉल्स ड्रॉप करूंगा वैसे ही सामने वाला भी करेगा, क्योंकि उससे सेफ फील होगा. और जो सेफ स्पेस हमने आई थिंक इतनी बार यूज किया, मैं बताना चाहूंगा सेफ स्पेस यही होता है कि आप जो महसूस कर रहे हो आप शेयर कर रहे हो सामने वाले से, अपने गार्ड्स ड्रॉप कर रहे हो, तो सामने वाला भी फिर अरे हाँ यार मेरे साथ भी हुआ था. एंड ऑटोमेटिकली दैट सेफ स्पेस, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है, साइकोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ती है. बस बोल दो यार, बोल दो जो. कैन यू हियर मी? मैं अटक गया शायद. हाँ, सिद्धार्थ आपका नेटवर्क अनस्टेबल है. In the meantime, while Siddharth's network stabilizes, I would like to ask our viewers to please, bring in your experiences. Talk about how you have felt the sense of distance with your parents. How the fathers have been a very authoritative and overpowering presence in your family, not have been very open as such. Very open as such to emotional expressions, etc. बताएं हमें, सिद्धार्थ से पूछें कि वहां तक कैसे पहुंचना है. उसके बाद हमें फॉलो जरूर करें, आसपास के लोगों से फॉलो करें.
mental back, Siddharth. Siddharth, on that note, I would like to also then ask you, you know, when you were going through this entire rush of emotions, uh, did you for once think that this entire confusion over the lack of excitement about life, the disinterest, the saddening feeling that you went through, probably confused you because the emotional intelligence was not exactly encouraged at home during growing up? आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ ये चीज़ रियलाइज करने में, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझने में कि हाउ इम्पोर्टेंट आर मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी. सेकेंड टाइम मैं समझ चुका था, उसकी ब्यूटी एक्सपीरियंस कर चुका था, तो सेकेंड टाइम मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ. इनफैक्ट मैं एक मोमेंट शेयर करना चाहूँगा जहाँ पे मैं उस डिप्रेशन से बाहर कैसे आया. आई नो दैट एग्जैक्ट मोमेंट कि कैसे मैं उस डिप्रेशन से बाहर आया. फर्स्ट जो सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, तो मैं घर ढूंढ रहा था. तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना घर, अपना जॉब और अपना रिलेशनशिप सब छोड़ दूंगा, बदल दूंगा नया. तो वो स्टेप मैंने लिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अब ये कैसे इफेक्ट कर रहा है मुझे. तो मैं घर देखने गया, मैं किसी से मिला और मैं बस नॉर्मल घर देखने गया था वहां पे, बट मैं उसके साथ बैठा और एक ट्यूनिंग हो गई. बहुत नॉर्मल वर्ड में बोलूंगा, एक बहुत ट्यूनिंग हो गई. हम बैठे वहां पे और हम बैठ के हमने 3 घंटे बात करी. और 3 घंटे बात करके जब मैं उस घर से निकला तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कई महीनों बाद एक इंसान से बात करी है. एंड आई वॉज एक्चुअली सो मच क्रेविंग दैट कि मैं किसी इंसान से बात करूं. इंसान इन द सेंस जो मैं बात कर पाऊं. डेली मेरी 50 लोगों से बात होती है. हाँ, खाना भी मैंने खा लिया, अच्छा मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है मैं ठीक हूँ, हाँ कॉलेज जा रहा हूँ, हाँ ये हो रहा है XYZ. बट एक्चुअली में जो हो रहा था मेरे अंदर, वल्नरेबिलिटी, मुझे उस दिन समझ में आई कि वल्नरेबिलिटी की पावर क्या है, क्योंकि उसने मुझे मेरे डिप्रेशन से निकाला. जब मैं वहां बैठा, मैंने अपने गार्ड्स नीचे करे, मैंने अपने मन की बात रखी, सामने वाले ने उसे सुना, अपने मन की बात शेयर करी, तो मेरे अंदर अचानक से लिसनिंग की पावर भी आ गई, मेरे अंदर से एम्पैथी भी आ गई, मेरे अंदर शेयरिंग की पावर भी थी, और वो बहुत ब्यूटीफुल इंस्टेंस बन गया. और वो मुझे ऐसा लग रहा था वहां जेंडर वाली चीज भी खत्म हो गई थी कि मैं एक लड़की से मिलके आ रहा हूँ या मैं एक लड़के से मिलके आ रहा हूँ. इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली ये चीज बोली. मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत दिन बाद एक इंसान से बात करी, क्योंकि मुझे जरूरत थी उस वल्नरेबिलिटी की, उस शेयरिंग की, ना कि मैं जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं था वहां पे. और ये मेल्स भी कर सकते हैं. मैं बहुत मेल्स को जानता हूँ जो ऐसा करते हैं, बट बहुत ऐसे हैं जिनको कभी ये इससे बहुत दूर कर दिया गया है. उनको भी चाहिए होता है, वो भी नहीं ले पाते और वो दे भी नहीं पाते. वो बहुत दूर हो गए हैं उससे. क्योंकि मैं जब मेरी ये सब थोड़ी जर्नी स्टार्ट हो रही थी अलग चीजें एक्सप्लोर करने की, तो मैं एक वीडियो देख रहा था कि बॉयज डू क्राई करके एक वीडियो था. उसमें बहुत अमेजिंग लाइन वो बोलता है कि रियल में कि उस स्ट्रेंथ को और वो स्ट्रांग जो कहते हैं कि आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा भाई, तुम आदमी हो, तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा. तो वो स्ट्रांग वर्ड को चैलेंज करता है कि स्ट्रांग क्या है. तो बोलता है आई थिंक फॉर मी स्ट्रांग मीन्स अ मैन हु अलाउज देमसेल्फ टू बी मूव्ड, टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग. कि अगर कुछ आ रहा है, नेचुरली एक इमोशन आ रहा है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो. वरना वो वाली कंडीशनिंग होती है कि मैं तो फील नहीं कर सकता. रोना क्या एक फीलिंग है, मैं वो फील नहीं कर सकता. मैं बहुत तेज हंस भी नहीं सकता. रोना तो बहुत दूर की बात है, हंसने को लेके भी पेरेंट्स, बहुत सारे फादर्स बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने बच्चों के सामने हंसने में भी, कि मैं खुल के नहीं हंस सकता, मैं खुल के अपनी बातें नहीं कर सकता. तो आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग वाली डेफिनेशन मेरी वहां से चेंज हो गई कि यार ये जो बना रखा है, बेवकूफ़ी कर रखी है कि आपको ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसे करके रहना पड़ेगा, स्टिफनेस लानी पड़ेगी, तो वो तोड़ के कैसे रियल स्ट्रेंथ वही होती है कि आप उसे फीलिंग एक्सप्रेस करने दो. तकलीफ होती है, आप रो रहे हो, 50 लोग आपको देख रहे हैं, तकलीफ होती है. आई थिंक ये ही स्ट्रेंथ है. तो वो मेन सर्कल और मेन जो कोई कम्युनिटी उनके बीच में वो लाना बहुत जरूरी है. उसको बहुत नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है. ये होगा,
कब तक दबाओगे? Beautiful. So, you saw how confused uh, uh, Siddharth, learned through his experiences, his interaction, that he could talk. He could talk about everything and anything that he felt. He also evolved as a person, and he started going into the places where he could find the right kind of support. The idea here is कि मर्द को definitely दर्द होता है, and उसका solution ना तो आपकी पार्टिंग होती है, ना आपकी ड्रिंकिंग होती है, और ना ही कई बार स्पोर्ट्स होता है. जो इमोशंस आपसे चीख चीख कर मांग रहे हैं, आपको उन्हें वही देना पड़ेगा जो उनकी डिमांड है. कई बार बैठ कर बातें करें. ये समझना ज़रूरी है कि हमने इतनी जोर से बांधा हुआ है आदमियों को, लड़कों को, कि आपको इमोशनली अपने वीकनेसेस डिस्प्ले नहीं करना है. आप उखड़ नहीं सकते हैं. उखड़ तो फिर भी सकते हैं, इसीलिए सबसे पॉपुलर एक्सप्रेशन जो आदमियों में पाया जाता है वो गुस्से का पाया जाता है. बहुत प्यार भी आया, मेरे प्यार से डपटते ही, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अच्छा जाओ यहाँ से, बहुत हो गया. और अगर बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत ऑफिस में टेंशन है, कुछ है, तो भी गुस्सा ही आता. Siddharth's entire life's experience, he says, is about talking, is about meeting people, it's about approaching people, it's about getting that warm hug from wherever you can get it. You have to find your spaces. Not everybody is evolved enough to be receptive to your idea of emotional openness. So look for your nooks and corners. The only sign that Siddharth wants you to notice here time and again is if you are disinterested in everything that is happening around you, if you are absolutely disinterested in also something as simple as getting a haircut and taking a shower every day on a set time, then you probably are slipping into depression. Seek help or seek friends, company, people you can talk to. Thank you for agreeing to come on our live session, Siddharth. It was a beautiful and humongously entertaining session with you. It was nice to meet a sensitive and sensible man for a change. I would expect more people to have gotten this kind of evolution through the years and become more receptive to the idea of sharing and expressing. Siddharth, before we say a goodbye for today, I would want you to share one last bit of experience from your life that you would want to maybe give to our viewers as a takeaway. क्या कर ले हम जब खुद ही बेड से उठने का दिल नहीं करा, जब खुद ही कुछ करने का दिल नहीं करा, तो हम कहाँ से वो एक इंसान ढूंढ कर लाएं जिससे हम बातें करें, जब बात करनी हमें खुद नहीं आती. आई थिंक मैं उस सिचुएशन के बारे में तो अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो बहुत एडवाइस जैसा साउंड हो सकता है कि ऐसा करो, और वो थोड़ा कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता. बट मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज को बिलीव करता हूँ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. एक अहमदाबाद में ऑर्गेनाइजेशन है मूव्ड बाय लव. सो देयर जिनकी वो ऑर्गेनाइजेशन है, जयेश भाई, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की थी और मैं आई थिंक वही बात शेयर करना चाहूंगा सबके साथ. उन्होंने, हम सर्कल में सब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में लोगों को ना लाइट की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, उनको वार्मथ की जरूरत है. लाइट उनके पास खुद की है, उनको बस वार्मथ दे दो. तो हम जो समझ देने भागते हैं ना, अरे मैं बताता हूँ तू ये कर, अरे नमिता तू ऐसे कर, तेरे को ये करना चाहिए, अरे XYZ तू ये कर, तेरे को ऐसे करना चाहिए. तो लाइट उनके पास है, समझ उनके पास है, उनको वार्मथ दे दो, बस उनको प्यार दे दो, उनको हक दे दो. कैसे हक करो यार, अगर हक कर सकते हो तो. इंडियन कल्चर में तो हक वैसे भी मतलब बाहर नहीं करते, करो, दबा के हक करो, अगर आ रहा है तो करना चाहिए. मैं तो सबसे पहले हाथ नहीं, सब ऐसे ही बोलता हूँ लोगों को, जिससे मेरे को लगता है कि मिलेगा, कि आओ हक करें. तो वार्मथ क्रिएट करो स्पेसेस में, कैसे भी, फिजिकल, बोल के, भाई इवन सेंडिंग अ स्मॉल टेक्स्ट. मेरा फ्रेंड है, इज अ मेल फ्रेंड, वो मुझे बहुत प्यारा मैसेज करता है, सेंडिंग अ जेंटल हग, होप योर लाइफ इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन वेयर इज सपोज टू गो. छोटे छोटे मैसेज बीच बीच में करता रहता है, एंड वो वार्मथ दे जाते हैं. वो दे जाते हैं, अरे कोई है, someone is remembering me. तो यस, लाइट थोड़ा कम कर दो.
तो या तो आपके आसपास कोई ऐसा एक सिद्धांत है जो अपने पुराने फेज में स्लिप हो रहा है, उसको पकड़िए, उसके रूममेट की तरह उसके बाकी के दोस्तों को मैसेज करिए और कहिए यार एक बार पूछ तो लो उससे जाके कि उसे कैसा फील हो रहा है, या सिद्धार्थ खुद बन जाइए और झपट के एक अच्छी वाली जादू की झप्पी ले लीजिए, आपके लिए जो काम करता है करिए, पर जिंदगी से नाराज मत होइए, जिंदगी से बिल्कुल निराश मत होइए। और अगर आप हो रहे हैं तो ह्यूमनाइजिंग लाइफ आपके लिए खड़ा है, तो प्लीज हमारे पेज को दूर तक उन लोगों तक प्लीज पहुंचाइए जिन्हें शायद हमारी जरूरत होगी किसी न किसी रूप में। हम यहीं खड़े हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और like I always say at the end of each of our sessions, keep smiling bright and bright. And if you can't, let us help you. Have a good night on that note. And share it with your friends as well, because they can help you. Thank you so much, Siddharth, for agreeing to be with us, for talking your experiences with us. It takes a lot of strength to open up and be vulnerable in amongst a larger audience, and that's the real bravery you displayed. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.